Yes, children, today's topic is manufacturing industries. Okay, Sachin is present. Very good. Children, manufacturing industries, according to your periodic test point of view, I will discuss this lesson. Okay? So, here you have seen many things are manufactured in industries, isn't it? For example, sugar, tea, diya, earthen lamps, and so many items. They are developed in industries using machines, isn't it? Large industries needs machine to make goods. That is, some utensils are manufactured in small industries, कुछ चीज़ें छोटी छोटी industries में, and there are some it needs heavy industries such as aircraft parts, huge machines, and so many things. So today production of goods in large quantities after processing from raw materials, clear, to more valuable products. Yeah, it is called manufacturing. The definition of manufacturing is what? Production of goods in large quantities after processing raw material to more valuable products, right? This is called manufacturing industries. Once again, production of goods processing from raw material to more valuable product is called manufacturing industries. Means गुड्स का प्रोडक्शन जब हम लार्ज क्वांटिटी में करते हैं रॉ मटेरियल्स यूज करके एंड इट बिकम्स वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, देन वी विल से वी हैव डन मैन्युफैक्चरिंग, इजंट इट? फॉर एग्जांपल, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड, राइट? पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, लकड़ी से पेपर बनता है ना, एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन, राइट? आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, राइट? एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, isn't it? Aluminium comes from bauxite. You have studied in chemistry. Now people employed in the secondary activities manufacture primary materials. हम क्या करते हैं? Primary materials are manufactured into finished goods. So the workers employed in the steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, they fall in this category. They are employed here. So manufacturing industries provide large employment, and it has, it is known as service providing sector, isn't it? So in this chapter we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in secondary sector. Manufacturing industries में हम सारे ऐसी industries को discuss करेंगे which falls in secondary sectors. Clear everyone? Now we are going to discuss the economic strength of a country, which is measured by the development of manufacturing industry. As much as manufacturing industries a country have, that much developed it is. Understand? Those countries which have more and more manufacturing industries, they are more and more developed. Now we will discuss the importance of manufacturing industries. Clear? These importance are very important, and it is important from board exam point of view. Clear? Now we will discuss them at a glance. Clear? So here we will see that manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, ये केवल एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज ही नहीं करता, इट इज बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. Manufacturing industries are backbone of our industry. It reduces the heavy dependence of people on agricultural income. लोग एग्रीकल्चरल इनकम पे डिपेंड करते थे. When manufacturing industries came, they got employed there, and their income, they are started earning more and more income apart from agricultural income. Second one is industrial development is a precondition for eradication of unemployment. किस कंडीशन पे ये इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर हुई? सो दैट unemployment should be eradicated. It should be completely removed. There should not be any unemployment. That's why every country tries to make manufacturing industries. Okay? So in this section we will study many joint sector industries, which is joint sector industries. Behind it
state government as well as individual, both use assets, both use capital, and public industries is it is given capital by government. Clear? Then export of manufacturing goods expands trade and commerce, ठीक है, and bring in much needed foreign exchange. Clear? So export industries goods, it expand our trade and commerce, means many people are employed in trade, commerce activities, and foreign exchange are coming from various countries, and countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. जैसी जो भी कंट्रीज रॉ मटेरियल को ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज प्रॉस्परस कंट्रीज. ओके, एंड इन दिस वे वी कैन से दैट these manufacturing industries are very important to us. Clear? So agriculture and industries are not only exclusive of each other, they move hand in hand. हमारा agriculture and industry both move hand in hand. It is very important topic and it may be asked in board examination for 5 marks. Clear? Agro industries in India have given major boost to agriculture. एग्रो इंडस्ट्रीज से ही आपको ट्रैक्टर मिलता है, आपको रोटावेटर, हार्वेस्टर, ठीक है, HYV सीड्स मिलता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल. इट मीन्स योर इंडस्ट्रीज आर हेल्पिंग एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एज अ रिटर्न agricultural sector they are providing raw material, right, for these industries and they are making agro products. So in this way both are running hand to hand. Okay, means एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता और दूसरे के बिना उसका काम नहीं चल सकता, यानी दोनों हाथ मिला के चलेंगे. In this way you can say that they depend on the latter for raw material and sell their products as irrigation pump, fertilizer, that I have told, isn't it? So ये है हमारा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के तौर पे हमारी इंडस्ट्रीज को एफिशिएंट होना पड़ेगा, नहीं तो हार जाएंगे अदर कंट्रीज से. टुडे यू आर वाचिंग दैट चाइनीज गुड्स they are becoming cheaper and cheaper and Indian goods they are becoming costlier. So there should be such type of industry which provides cheaper product with good quality. So this is our competitiveness. Okay, सेल्फ सफिशियंसी अलोन इज नॉट एनफ. केवल सेल्फ सफिशिएंट होने से नहीं काम चलेगा. आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट होना चाहिए. देन वी विल compete in international market, otherwise our products will be sold in domestic markets only. Clear? Now we will discuss contribution of industry to national economy. हमारी जो national economy है, how industries contribute in national economy. Clear? This is very important point to be discussed here. We will discuss main points. Clear, children? So here manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP. हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीडीपी का केवल 17% है, एंड आउट ऑफ टोटल 27%, क्लियर, फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग. 10% जीडीपी का माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का कंट्रीब्यूशन है. क्लियर? एंड इफ वी कंसीडर दिस इज़ वेरी लोअर इन कंपैरिजन टू एशियन कंट्रीज़. अगर ये एशियन इकोनॉमी की बात की जाए, अमेरिका, रसिया, चाइना से, तो हमारी इकोनॉमी बहुत पुअर है. सो इट इज़ 25 to 35%, नॉट सो गुड. सो द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ गोइंग टू बी, यू कैन से, हाँ, so manufacturing over the last decade has been only 7%. Just imagine, the desired growth rate over next decade is 12%. 2003 में manufacturing is once again growing at rate of 9 to 10%, right? So we can say
दैट हमारा 2003 में जो ग्रोथ था 9 to 10% पर एनम। तो ये एक appropriate policy should be launched by government so that industries gets improved, their productivity increases. Economists, they always predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. हमेशा अनुमान लगाते हैं कि अगले डिकेड में हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो जाएगी। एंड द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, एक ये काउंसिल सेटअप हुई है, ठीक है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, अंडरस्टैंड, टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी, राइट। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट industrial location. Industries should be located according to its convenience, isn't it? अपनी सुविधा के अनुसार एजेंसी हमारी इंडस्ट्रीज लोकेट होनी चाहिए, क्लियर। इट शुड हैव लिंकेज विद मार्केट, इंडस्ट्रीज शुड बी लिंक्ड विद मार्केट। अगर मार्केट आपका बहुत दूर है तो भी आपको प्रॉब्लम है, योर प्रोडक्ट विल बिकम कॉस्टलियर एंड कॉस्टलियर। Transport will increase, you have to bring laborers from far distant places, and market being far away, it creates a major problem, clear। Question comes, what is agglomeration economy? Once I had told you, many industries tend to come together to make use of the advantages offered by urban centers. Urban centers में there are so many advantages, clear, that is market is near, there are banks, schools, colleges, railway stations and so many things, okay, right। So in the pre-independence period, most manufacturing units were located in place from the point of view of overseas trade, ठीक है। जहाँ पे ओवरसीज ट्रेड की सुविधा यानी कोस्टल एरिया में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज लगने लगी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरिया, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ मार्केट लिंकेज की जब बात की जाए तो हमारा इनपुट जहाँ रॉ मटेरियल नज़दीक में है वहाँ इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, क्लियर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कंसीडर करने पड़ेंगे। वहाँ लैंड चीप है कि नहीं, लेबर सस्ते है कि नहीं, तो मतलब ज़्यादा पूंजी तो नहीं लगानी पड़ रही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर ईजिली बन जाएगा कि नहीं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल लाने के लिए, एंड फैक्ट्री से जो हमारा आउटपुट प्रोडक्ट्स है उसको भी ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक ले जाना है, एंड फ्रॉम मार्केट वी विल गेट मनी, इजंट इट। सो इंडस्ट्री विल गेट मनी फ्रॉम मार्केट। सो द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की पॉलिसी पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन क्या हो, राइट। तो देन हियर आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए, राइट। तो means cost of obtaining raw material very low, understand, there should be low cost of obtaining material up to the site, clear, and cost of production at site, जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट जो है हमारा कम होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग पे कम कॉस्ट आना चाहिए, एंड डिसीजन टू लोकल फैक्ट्री एट साइट, जो लोकल फैक्ट्री है वो भी वहीं आसपास लोकेट होनी चाहिए जो हमें रिमेनिंग पार्ट सप्लाई करते हैं। सो इंडस्ट्रीज, वी आर गोइंग टू क्लासीफाई नाउ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल आते हैं। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, दैट इज आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स एंड, क्लियर। फिर अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड है। ये जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज में हमारे जैसे एल्युमिनियम, कॉपर स्मेल्टिंग, स्टील, आयरन, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, यू नो वेरी वेल।
फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है एंड कॉटेज एक लार्ज इंडस्ट्रीज होती है मोर देन 1 करोड़। On the basis of ownership, you have got public sector, private sector, joint sector and cooperative sector industries. Clear? So, you know very well, जैसे BHEL और SAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर में आता है। प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, बजाज ऑटो, ये सब प्राइवेट में आता है। जॉइंट सेक्टर में आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, जितने पेट्रोल पंप्स हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आपके बहुत सारे शुगर मिल्स, ओके, शुगर इंडस्ट्रीज आती हैं। उसके बाद आपका जो है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल कितना भारी है ना। जैसे लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसमें हल्के रॉ मटेरियल लगते हैं उसको लाइट इंडस्ट्री कहेंगे, और जिसमें हैवी मटेरियल है उसको हैवी इंडस्ट्री कहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप क्लासीफाई कर सकते हैं लाइट इंडस्ट्रीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज में। क्लियर? फिर आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जितने भी जिसके रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे वर्क करते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड टेक्सटाइल, शुगर एंड एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो इनकी इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी अलग है। क्लियर? देन यू आर गेटिंग हियर वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो एक फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर, और उसी फाइबर की स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं, फिर उसको स्पिनिंग करके, वीविंग करके, निटिंग करके फैब्रिक बनाते हैं, फिर उसी को डाइंग एंड फिनिशिंग करके गारमेंट्स बनाते हैं एंड गारमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड हियर एंड इट गोज़ टू मार्केट। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये प्रोसेसेस हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यू हैव अंडरस्टूड। सिमिलरली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, cotton textiles were produced with the hand spinning and handloom. Okay, so the first successful textile mill was established in Mumbai, very important term. And the 2 world wars were fought in Europe. India was British colony, so there was demand for cloth in United Kingdom. Hence they gave a boost to the development of cotton textile industry. Cotton textile industries का boost हो गया वहाँ पे, इंडिया से रॉ मटेरियल जाने लगा। So in the early years, cotton textile industries was concentrated in a cotton growing belt. ठीक है, हमारे जो cotton growing belts हैं, क्लियर, तो वो जैसे महाराष्ट्र, इट इज़ कॉटन ग्रोइंग बेल्ट, गुजरात कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो होता है क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल है एंड मार्केट भी वहाँ नज़दीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोस्टल एरिया अवेलेबल है, लेबर सस्ते हैं गुजरात में, क्लाइमेट मॉइस्ट है। मॉइस्ट क्लाइमेट होने की वजह से आपका जो थ्रेड है इट डज नॉट ब्रेक। मॉइस्ट क्लाइमेट में धागा टूटता नहीं है, इसलिए वहाँ जो रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ इज़ वेरी हाई, प्रोडक्शन हाई होता है। इन अदर पार्ट इट इज़ नॉट सो। क्लियर? सो वी कैन से दैट ऑल सच पार्ट्स they are major factors how to produce, and that's why your Maharashtra and Gujarat is suitable for cotton textile. वहाँ spinning, ginning, weaving, everything is possible. ठीक है? Then dyeing, उसकी डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सिविंग, सारी चीज़ें अवेलेबल, क्योंकि मुंबई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑल इंडिया से लेबर्स भाग भाग के आते हैं। And the industry by creating demand supports many other things. Okay? All these portion yes. While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills. Weaving के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। खादी भंडार से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है हैंडलूम और पावर मिल की अपेक्षा। तो वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी? टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू मेनी इंडियंस। ठीक है, इसलिए उन्होंने खादी पर फोकस किया था। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर? लूम इज लोअर दैन पावर लूम एंड हैंडलूम, so that more and more people gets employed. So India exports yarn to Japan. Clear? इंडिया जो है यार्न कहाँ से एक्सपोर्ट करता है? जापान से।
एंड इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, USA, UK, रसिया, ठीक है, ऑल दीज प्लेसेस दे आर पोर्शन वेयर इट इज़ एम्प्लॉयड. सो वी हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न. हमारे वर्ल्ड में मतलब हमारी कंट्री का लार्ज शेयर है कॉटन यार्न के मामले में. एंड आवर स्पिनिंग मिल आर कम्पिटिटिव एट ग्लोबल लेवल. पूरे वर्ल्ड में हमारी स्पिनिंग जो है उसको कंपटीशन करने वाले लोग नहीं हैं. एंड वी आर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी यार्न एंड वी आर अर्निंग लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, so much foreign exchanges are earning we are. Okay, now we are coming to our points on yeah, let us see this map, textile industries, but in this test map work will not come, but you should study them. Cotton textile, जैसे आपने देखा अहमदाबाद, फिर जो है पोरबंदर, है ना, फिर वूलन टेक्सटाइल आपका जो है बहुत सारे प्लेसेस पे, लुधियाना, अमृतसर, राइट, फिर इधर वाराणसी के पास, फिर इधर मुंबई, मेनी एरियाज. एंड सिल्क टेक्सटाइल कोलार, मैसूर, फिर इधर पे आ जाइए, हाँ, मुर्शिदाबाद के पास है, हावड़ा, हुगली के पास, ठीक है. तो ऑल दीज प्लेसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर टेक्सटाइल. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantities. हम अपना वीविंग सेक्टर क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है? Because we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton. The need to import is still felt. हाँ, ठीक है, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो क्यों ना हम अपने ही कंट्री में बनाएं. पावर सप्लाई इज इराटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स. हमारे कुछ मशीनरीज दे नीड्स अपग्रेडेशन, दे आर ओल्ड, दैट्स वाई प्रोडक्शन इज लो. अदर प्रॉब्लम्स आर लो आउटपुट ऑफ लेबर. स्किल्ड लेबर नहीं मिलते हैं, ठीक है, जो भी लेबर मिलते हैं वो पूरा आउटपुट नहीं देते हैं. एंड स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से भी कंपटीशन. चलिए अब बात करते हैं जूट टेक्सटाइल की. क्लियर, जूट टेक्सटाइल. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स. ओके, इंडिया हमारा रॉ जूट एंड जूट गुड्स के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1855 एट रिसरा. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. After partition 1947, jute mills remained in India, but 3/4 of the jute mills producing they went to Bangladesh. बांग्लादेश में चले गए वो जब पार्टीशन हो गया. That's why there are many factors. हुगली बेसिन में ही सबसे ज़्यादा जूट मिल्स क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है. It is supported by good network of railway, roadways, waterways. It facilitate movement of raw material to mills. फिर अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट. चीप लेबर है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में. एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स बिहार, उड़ीसा, यूपी से सस्ते लेबर आ जाते हैं, ठीक है. वहाँ सिटीज़ है, कोलकाता नज़दीक होने की वजह से वहाँ बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ ये ज़्यादा अवेलेबल है. दैट्स वाई इट इज़ सुटेबल प्लेस फॉर जूट प्रोडक्शन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज. बहुत स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में. ओके, इंटरनेशनल मार्केट इज सफरिंग फ्रॉम स्टिफ कंपटीशन. क्लियर. सो बांग्लादेश, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इन सबको जूट सप्लाई करने में क्यों दिक्कत हो रही है? बिकॉज ऑफ योर वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक बैग्स आर अवेलेबल विच आर वेरी चीपर. क्लियर. चलिए अब बात करते हैं हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज़ की. इंडिया स्टैंड सेकेंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी. तो इंडिया का फर्स्ट रैंक है किसमें? गुड्स एंड खांडसारी में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इंडिया स्टूड फर्स्ट प्लेस इन गुड़ एंड खांडसारी. सो द रॉ मटेरियल लिस्टेड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की. रॉ मटेरियल भले भारी होता है लेकिन इसमें हॉलेज, सुक्रोज कंटेंट जो है, अगर हम उसको अपने जो है शुगर केन को ज़्यादा देर तक गन्ने मतलब धूप में छोड़ दें तो इसमें सुक्रोज कंटेंट घट जाता है.
इसलिए जूट मिल में जो है हमारा बहुत लॉस होता है। क्लियर? इसलिए लोग गुड़ और खंडसारी बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट मिलता है। सिमिलरली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु यहाँ पे खूब है शुगर इंडस्ट्री। In recent years, there is tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states. आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो गया है, ठीक है। दिस इज बिकॉज केन प्रोड्यूस हियर हैज़ हाइयर सुक्रोज कंटेंट, यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है, इस वजह से यहाँ हाइयर सुक्रोज जो है कंटेंट है, एंड कूलर क्लाइमेट है मॉडरेट क्लाइमेट की वजह से। दैट्स वाई it is suitable in Maharashtra. Many challenges are faced by this industry. जैसे old and inefficient method of production, आज भी पुराने मेथड से प्रोडक्शन होता है। ट्रांसपोर्ट डिले की प्रॉब्लम, केन जो है शुगर केन फैक्ट्री तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, और बहुत ज़्यादा बैगेज निकलता है इसमें बैगेज, तो ये सब एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमारी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें मिनरल और मेटल्स यूज करते हैं। क्लियर? सो ऑल ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स और मिनरल्स। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात ले लो, ठीक है। तो आयरन के लिए हमें कौन कौन सा जो है रॉ मटेरियल होता है और कौन सा ओर होता है। तो आयरन इंडस्ट्रीज को पहले तो हम हैवी, मीडियम एंड लाइट, दो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्लियर? एंड क्या स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स मशीनरी में यूज़ होता है, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट, वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स में। सो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्री। हर कंट्री का जो इंडेक्स है, ठीक है, वो प्रोडक्शन ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। क्लियर? आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी। हर चीज़ भारी, फिनिश्ड गुड्स भी हैवी है, रॉ मटेरियल भी हैवी और बल्कि है। दैट्स वाई इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हैवी इंडस्ट्री। क्लियर? आयरन और कोकिंग कोल और लाइम स्टोन अगर 4:2:1 में मिला देते हैं और उसमें कुछ क्वांटिटीज मैग्नीज डाल देते हैं, देन इट बिकम्स स्टील। ओके, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील? यू कैन इजीली टेल दैट आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइम स्टोन को हम 4:2:1 में जब मिक्स करके उसमें मैग्नीज डाल करके उसको 1000 डिग्री सेल्सियस से हीट करते हैं। क्लियर? देन इट बिकम्स स्टील। सो वेरी सिंपल प्रोडक्शन, यही आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड? अब स्टील प्लांट्स का लोकेशन क्या होना चाहिए? बढ़िया लोकेशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? जहाँ पे हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा मैन्युफैक्चर मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है और रॉ मटेरियल सब हैवी, इसलिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, वहीं पे ये ज़्यादा सफल है। जैसे 106.5 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन 2018 में इंडिया ने किया, एंड इट रैंक्ड सेकेंड अमंग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पे इंडिया आया क्रूड प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन में, कच्चा माल। सो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बी केयरफुल एवरीवन। इन 2018 पर कैपिटा कंजम्पशन है ना ऑफ स्टील इन कंट्री वाज ओनली अराउंड 70.9 पर केजी पर एनम, ठीक है। एक साल में 70.9 केजी पर हेड का कंजम्पशन था पूरे वर्ल्ड में। अभी हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स की बात करें तो 2013-14 में इट वाज 87.67, उसके बाद हमारा 14-15 में बढ़ा, फिर 15-16 में घट गया, फिर 16-17 में ज़्यादा बढ़ गया, और फिर 17-18 में और घट गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से डाटा दिया गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन से हमें एक आइडिया लगता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है कैसे हुआ, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। क्लियर? आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, टुमारो वी विल डिस्कस दिस लेसन फुल। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, जैसे हमारा ब्लास्ट फर्नेस होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है बच्चों?
आपको बता दें ब्लास्ट फर्नेस जो होता है ये इस तरीके का एक ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, आपने केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, ऐसे होता है। और ये जो नीचे होता है, ठीक है, इसके नीचे जो है आपका यहाँ पे भट्ठी लगी होती है जहाँ कोयला लगा रहता है, फिर ऐसे ऐसे करके होता है। ये केमिस्ट्री की बुक में आपने पढ़ा होगा, दिस इज ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऊपर से हम लोग क्रूड आयरन ओर डालते हैं, ठीक है, इस पे कुछ टिक जाता है और ऐसे करके जो है हीट होता है, फिर अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम 4:2:1 में, ठीक है, इसमें डालते हैं और उसके बाद फिर इसमें मैग्नीज मिलाने के बाद हमें स्टील मिलता है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लांट तक हमें लाना होता है, ट्रांसपोर्ट करके ब्लास्ट फर्नेस में आयरन और मेल्ट होता है, इसमें मेल्ट होता है। लाइम स्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल, इसमें लाइम स्टोन एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं, इसमें ऐड किया जाता है। फिर स्लैग इज रिमूव्ड, यहाँ से स्लैग को रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ से ये नीचे जो स्लैग यहाँ पे ऐसे ऐसे इकट्ठा होता है, उसको ऐसे रिमूव कर लिया जाता है। ओके, इन दिस वे वी कैन सी दैट हमें जो है कोल कोक को बर्न करने से ऐसा होता है। फिर हमें पिग आयरन मिलता है, दैट इज मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग, ठीक है। ये जो पिघला हुआ आयरन है इसको एक जगह पे ऐसे गिरा देते हैं एक पार्टिकुलर सरफेस पे, ठीक है, तो वो पिग आयरन बन जाता है। अब पिग आयरन इज फर्दर प्योरीफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, इसको फिर मेल्ट करते हैं, फिर ऑक्सीडाइज करते हैं जिससे इम्प्योरिटी निकल जाए। फिर मैग्नीज, निकल और क्रोमियम उसमें ऐड किया जाता है पिग आयरन में, तब स्टील बनता है। ओके, पिग आयरन में जब हम उसको मेल्ट करके निकल, क्रोमियम और मैग्नीज ऐड करते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन, तब वो स्टील बनेगा। अब उसको हम शेप देते हैं स्टील को, जैसे हम उसको जैसे टिन शेड में, है ना, या उसको जो है कास्ट कर लेते हैं, फोर्जिंग कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर हम जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं मार्केट में। क्लियर? या जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं, या हमारे ज़्यादातर रेलवे में कंजम्पशन है स्टील का, ठीक है, तो वहाँ सप्लाई करता है। So in this way we have got. Okay children, today this much only. So we will discuss. अपने खत्म मीटिंग का टाइम ही हो गया था।